Assalamualaikum. I am Hafsa Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on diagnostic classification system. यानी कि जब एक पर्सन abnormal होता है तो उसको लेके आता है क्लिनिकल सेटअप में, तो किस तरह उसको डायग्नोस किया जाता है. The diagnostic classification is the official list of mental disorder recognized in DSM. डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन इस तरह की जाती है कि एक ऑफिशियल लिस्ट दी जाती है मेंटल डिसऑर्डर की, जिसमें से चेक किया जाता है कि कौन से क्राइटेरिया के अंदर जो पेशेंट है वो फॉल कर रहा है, क्लाइंट जो है वो फॉल कर रहा है, फिर उसकी बेस के ऊपर उसे डायग्नोस कर दिया जाता है. ईच डायग्नोसिस इंक्लूड्स अ डायग्नोस्टिक कोड विच इज़ टिपिकली यूज्ड बाय इंडिविजुअल प्रोवाइडर्स, इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज फॉर डाटा कलेक्शन एंड बिलिंग पर्पसेस. इसके लिए जो होते हैं वो एक डायग्नोस्टिक कोड्स होते हैं जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, एजेंसीज जो होती हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं और फिर उसकी बेस के ऊपर वो डायग्नोस करते हैं कि पर्सन जो है वो उसको अब नॉर्मेलिटी जो है वो किस लेवल तक की है और किस डिसऑर्डर के अंदर वो फॉल कर रहा है. Diagnostic Classification System (ICD). ICD stands for International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. ICD serves a broad range of uses globally and provides critical knowledge on the extent, causes and consequences of human disease and death worldwide via data that is reported and coded with the ICD. ICD के जो है उसके ज़रिए ये होता है कि जो काजेज़ जो होती हैं डिसऑर्डर की वो तलाश की जाती हैं कि वजूहात क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या आ रहे हैं, रिज़ल्ट्स क्या हैं और इंसान के ऊपर उसका कितना इफ़ेक्ट हो रहा है और उसकी वजह से कितनी जो है वो डेथ रेट आ रहा है, उसको जो है वो ICD जो है वो बताता है. Why we have diagnostic classification system? Diagnostic classification system have been constructed to help clinician make diagnosis. जो diagnostic classification system है ये help करता है clinicians को, जो psychologist होता है उन्हें diagnose करने में. The most commonly used classification system is the United States is the American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 4th edition. ये बता रहा है कि इसको यूज़ करके जो है वो diagnose किया जाता है. Difference between ICD and DSM. The ICD is produced by the Global Health Agency with the Constitutional Public Health Mission. ये जो है ICD को Global Health Agency वालों ने बनाया था. While the DSM is produced by a single National Professional Association. DSM को जो एक National Professional Association ने इंट्रोड्यूस करवाया. W Health Organization primary focus for mental and behavioral disorder classification is to help countries to reduce the disease burden of mental disorder. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये इसका मेन जो बेसिक पर्पस है, ये जो फोकस करती है मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर के ऊपर जो है वो फोकस करती है और हेल्प करती है ये डिफरेंट कंट्रीज़ को कि उनमें जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स मेंटल डिसऑर्डर आ रहे हैं वो कम हो जाएं. एडवांटेज ऑफ DSM. DSM helps guide research in the mental health field. The diagnostic checklist help ensure that different group of researchers are studying the same disorder. इसका फ़ायदा ये होता है कि डिफरेंट जो लोग होते हैं वो सेम डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकल के अंदर अप्लाई करते हैं और देखते हैं उसमें क्या काजेज़ आ रही हैं, उसके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं और आगे फर्दर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आ रहा है. DSM used more than ICD. The main argument used by those who favor DSM is that it create more accurate diagnose. DSM को ज़्यादा इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये accurately diagnose करती है disorder को. This may be true partly because operational criteria are used by also, but also because a much greater amount of resource and effort goes into making the classification than with ICD, which received very little funding indeed. यानी कि जो ICD है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि क्या डिसऑर्डर है, जबकि DSM जो है उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो बताया होता है और वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है डायग्नोस करने में. The APA decided to create a new classification system and in 1952 the first edition of the DSM was released. APA ने डिसाइड किया था कि कोई न्यू जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो 1952 के अंदर DSM जो थी वो फर्स्ट DSM जो थी वो रिलीज़ हुई थी, इंट्रोड्यूस करवाई गई थी. The DSM-1 contained 102 वेरी ब्रॉड डायग्नोस्टिक कैटेगरीज. 102 इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज थी, यानी कि डिफरेंट जो थे वो डिसऑर्डर्स थे जो बेस कर रहे थे फ्राइड के साइकोडायनामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, यानी कि अनकॉन्शियस के वजह से जो डिसऑर्डर हो रहे थे वो इसके ऊपर मेन जो था फोकस किया गया था. DSM-5 TR like DSM-5 is a manual for assessment and diagnosis of mental disorder and does not include information or guideline
फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसऑर्डर। DSM जो है वो एक मैनुअल है असेस करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए मेंटल डिसऑर्डर को। द पर्सनैलिटी इन्वेंट्री फॉर DSM-5 मैयर माइल्डेटिव पर्सनैलिटी, यानी कि जो पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज हैं DSM के अंदर वो क्या मैयर करती है, नेगेटिव इफेक्ट देखती है, एंटागोनिज्म, डिसइनहिबिशन एंड साइकोटिज्म जो है उसको मैयर किया जाता है। फॉर अडल्ट एंड चिल्ड्रन एज 11 एंड ओल्डर दे आर ब्रीफ फॉर्म्स विद 25 आइटम एंड फुल वॉल्यूम विद 220 आइटम्स। इंस्टेड द DSM-5 लिस्ट कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी DSM-5 के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर जो है उनको कवर किया गया है। फॉर एग्जांपल जो है इसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और डिफरेंट जो डिसऑर्डर हैं और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। न्यूरोटिक और साइकोटिक दो तरह का है। न्यूरोटिक के अंदर आ जाते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन डिसऑर्डर। जो साइकोटिक है उसके अंदर शिज़ोफ्रेनिया और अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसके अंदर इमोशंस आ जाएं वो इंक्लूड होते हैं। कैटेगोरिकल मेथड, द DSM-5 मेथड फॉर डायग्नोसिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कॉल्ड अ कैटेगोरिकल अप्रोच, हाउएवर एन अल्टरनेटिव मेथड कॉल्ड द डिमेंशनल अप्रोच। कैटेगोरिकल मेथड और डिमेंशनल अप्रोच जो हैं वो डिफरेंट दो मेथड हैं जो DSM-5 के अंदर बताए गए हैं। The upcoming 5th edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder introduces an integration of a dimensional approach to diagnosis and classification with the current categorical approach। DSM-5 जो है वो डिफरेंट डायग्नोसिस को जो है डिफरेंट जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनको डायग्नोस करने के लिए यूज़ की जाती है। कैटेगोरिकल मेथड के अंदर डिफरेंट जो है वो डिसऑर्डर आता है जिसमें ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, ईटिंग, जेंडर डिसफोरिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ईटिंग डिसऑर्डर, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर इंक्लूड होते हैं। Dimensional information, the DSM-5 proposed dimensional model include two dimensions, criteria A, level of personality functioning, and criteria B, pathological personality traits. We are discussing a proposed alternative model for personality disorder diagnosis offered in DSM-5 in the chapter called Emerging Measures and Model। यानी कि जो dimensional इंफॉर्मेशन भी DSM-5 के अंदर इंक्लूड होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन को क्राइटेरिया A और B में डिवाइड किया जाता है। क्राइटेरिया A के अंदर लेवल ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो बताए जाते हैं कि पर्सनैलिटी के अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है। क्राइटेरिया B के अंदर जो है वो पैथोलॉजिकल जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आती हैं वो बताई जाती हैं। उसके बाद सवाल आता है कि इस DSM-5 इफेक्टिव क्लासिफिकेशन सिस्टम और नॉट। DSM-5 जो है वो एक इफेक्टिव क्लासिफिकेशन सिस्टम है कि नहीं है। डिस्पाइट द कंसर्न ऑफ सम सेगमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ कम्युनिटी द DSM रिमेन्स द स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस लाइक एनी अदर प्रोफेशनल मैनुअल। हाउएवर द DSM इज डिज़ाइंड टू बी यूज्ड एज वन ऑफ मैनी टूल्स फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। DSM जो है वो एक प्रॉपर जो है टूल है जो डायग्नोस करने में और ट्रीटमेंट करने में यूज़ होता है। Despite the fact that the DSM is a US classification system for the diagnosis of mental disorder, यानी कि US जो है उस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने इंट्रोड्यूस करवाया था DSM को जो कि हेल्प आउट करती है डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में। DSM-5 जो है वो एक वैलिड, रिलायबल और एक्यूरेट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, यानी कि ये एक बुक है, एक टूल है जो हेल्प आउट करता है डायग्नोस करने में डिफरेंट डिसऑर्डर को। और क्लिनिशियन की और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको यूज़ करके जो है वो पेशेंट और क्लाइंट्स जो उनके पास आते हैं उसको जो भी मेंटल डिसऑर्डर होता है उसको डायग्नोस करते हैं। Call for change. Some of the key changes include addition to and removal of diagnostic categories, recognizing of categories and change in terminology। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिर जो यानी जिस तरह के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इसका नाम पहले अस्पर्गर डिसऑर्डर था, इस तरह फिर इनके नेम चेंज होते रहे। कैन डायग्नोसिस एंड लेबलिंग काज हार्म, इसकी वजह से कोई नुकसान होता है या लेबल जब एक पर्सन के ऊपर लग जाता है तो बिल्कुल उसका जो है जब एक लेबल लग जाता है, यानी अगर एक बच्चा उसके ऊपर लेबल लग जाए कि ये इस लर्निंग डिसऑर्डर के साथ है तो फिर क्लास के अंदर भी वो इस तरह ठीक तरह से कोप अप नहीं कर पाता। उसको पता आता कि मैं जो हूँ मेरे से ठीक तरह से परफॉर्मेंस नहीं होगी और उस पर्सन के ऊपर जो है एक तरह से लेबल लग जाता कि ये ठीक तरह से वर्क नहीं कर सकता। Treatment plan for patient. Detailed plan with information about a patient disease, the goal of treatment, the treatment option for the disease and possible side effects and the expected length of treatment। जब एक डायग्नोस कर लिया जाता है उसके बाद फिर एक पेशेंट के लिए जो है ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है कि कौन सी इसकी डाइट होनी चाहिए, इसके गोल्स क्या होने चाहिए और क्या ट्रीटमेंट इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है जिसके बाद ये ट्रीट हो सके। ट्रीटमेंट थेरेपीज, डिफरेंट ट्रीटमेंट जो थेरेपीज़ हैं वो यूज़ की जाती है जिसके साथ पर्सन का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, सेल्फ एस्टीम है वो हाई होती है, उसकी जो एंजाइटी है वो कम होती है
और उसकी स्ट्रेंथ मिलती है उसको कोपिंग मैकेनिज़्म में, कि वो अगर कोई इस तरह की कोई डिप्रेसिव या कोई एंजाइटी वाली सिचुएशन है तो वो उसके अंदर कोप कर सके। उसकी जो सोशल इम्प्रूवमेंट होती है सोसाइटी के अंदर, वो इजीली जो है वो मूव ऑन कर सकते। ट्रीटमेंट के लिए कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि CBT यूज़ की जाती है, जिसके ज़रिए ये एक साइकोथेरेपी है जिसके ज़रिए जो है डिफरेंट इमोशनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एंजाइटी रिलेटेड, डिप्रेसिव रिलेटेड, शिज़ोफ्रेनिया रिलेटेड डिसऑर्डर जो हैं वो ट्रीट किए जाते हैं। बेसिक गोल्स फॉर हेल्पिंग क्लाइंट्स, कौन से गोल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं क्लाइंट को? फैसिलिटेटिंग बिहेवियरल चेंज, हेल्पिंग इम्प्रूव द क्लाइंट एबिलिटी टू बोथ एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलेशनशिप, उसका मेंटेन करने में, एस्टैब्लिश करने में हेल्प की जाती है। हेल्पिंग इन्हेंस द क्लाइंट इफेक्टिवनेस एंड देयर एबिलिटी टू कोप करने में जो है उसके हेल्प करता है और डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है। इफ़ेक्टिव थेरापीज़ जिनमें कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, साइकोडायनामिक थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरापीज़, इस तरह ये डिफरेंट थेरापीज़ यूज़ की जाती हैं जो अबनॉर्मल पर्सन होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। Why is therapy effective? Working with the psychologist, therapist or counselor in a therapeutic relationship gives you an opportunity to explore your thought, feeling and pattern of behavior. थेरेपी किस तरह इफ़ेक्टिव होती है? क्योंकि ये हेल्प आउट करती है, एक रिलेशनशिप पहले तो बिल्ड हो जाता है काउंसलर के दरमियान और जो क्लाइंट होता है उसके दरमियान। इसके अलावा डिफरेंट थेरेपीज़ के ज़रिए जो है वो पर्सन के थॉट के बारे में, फीलिंग्स के और जो उसका बिहेवियर पैटर्न होता है उसके बारे में पता चलता है। इट कैन आल्सो हेल्प यू लर्न न्यू कोपिंग स्किल्स एंड टेक्निक्स टू बेटर मैनेज डेली स्ट्रेसर एंड सिम्टम एसोसिएटेड विद योर डायग्नोसिस। थेरेपीज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं इन चीज़ों को लर्न करने में, कोप करने में और डेली जो स्ट्रेसर होते हैं उनको मैनेज करने में। इस तरह डिफरेंट थेरेपीज़ को यूज़ करके जो है वो अब नॉर्मल पर्सन का या जो क्लाइंट है उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि ICD और DSM को हम यूज़ करके एक जो पर्सन होता है, एक क्लाइंट होता है, पेशेंट होता है, उसको हम डायग्नोस करते हैं। ICD जो है वो कम यूज़ होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसके बरक्स जो DSM है वो एक इफ़ेक्टिव टूल है जो कि रिलायबल, वैलिड और एक्यूरेट है और उसको यूज़ किया जाता है और डायग्नोस किया जाता है कि जो पर्सन है उसको कौन सा अबनॉर्मल डिसऑर्डर है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।